Hello, my dear student of class 10th. Now, today we will discuss the new concept. As you know that in previous video we already discussed about the concept of the solving process of the two simultaneous linear equation in two variable means x and y. So in previous video we already discussed about the first method, graphical as well as substitution. So I already told you that in graphical method we have to prepare the two point table. As you can see at this page in example 2 check whether the pair of equation x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12. You can see in this example, first of all we have to prepare the two point table. As you can see at this page, from the first equation x plus 3y equals to 6, y equals to 6x minus 3. जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यहाँ से हमने निकाली y की वैल्यू और ये y की वैल्यू आती है 6 माइनस एक्स अपॉन 3. क्लियर. सो अब आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे y की डिफरेंट वैल्यू. क्लियर. So you can see in the point table, whenever x is 0 then y is 2 and whenever x is 6 then y is 0. In second equation 2x minus 3y equals to 12. So y equals to 12 minus 2x upon minus 3. Clear. Now put the different values of the x and find the different values of the y. So whenever we put the value of x 0 then we have y minus 4 and whenever x is 6 then we have y as a 0. So after preparing the two following point table, we have to plot these point onto the graph paper, and after plotting the graph paper with the help of scale, join these points and then you will find out the two straight line in which you can see at this page two straight line is AD and CB. Point B and point D coincide because point B is 6, 0 and as well as point D is also 6, 0, and you can see that this point 6, 0 is the common point of these two straight line. Clear. So from this common point, abscissa part is 6 and ordinate part is 0. So x is 6 and y equals to 0. क्लियर. तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं. और ग्राफिकल मेथड में यहाँ पे बस एक मेन बात ये है कि ग्राफिकल मेथड में जब भी आप दो स्ट्रेट लाइन को अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 डिफरेंट केस मिलते हैं. केस नंबर 1 ये है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर सकती हैं. वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं. और सेकंड केस ये है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकती हैं. और थर्ड केस ये है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे किसी कॉमन पॉइंट पे, मीन्स जैसे कि पॉइंट पी है, तो उस केस में क्या होगा कि वो पॉइंट पी बनेगा उनका सॉल्यूशन. क्लियर. केस नंबर टू यह है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी तो वहाँ पे आ जाएंगे फिर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे तो वे एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम कट करेंगी. केस नंबर थ्री क्या है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है. इट मीन्स वी हैव नो सॉल्यूशन. सो in case 1 we have a unique solution, in case number 2 we have a infinitely many solution, and case 3 in which we have no solution. So whenever we obtain a solution then system will be consistent. So in the case 1 and case 2 system is consistent, but in the case 3 system is inconsistent. Clear. सो ये आप बात ध्यान रखें कि भाई कुल मिला करके
जो आपका सॉल्यूशन है यदि आ रहा है सिस्टम से तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, और यदि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी सोल्व किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0 इज कंसिस्टेंट। और फिर आगे कह रहे हैं इफ सो, यदि कंसिस्टेंट है, सॉल्व देम ग्राफिकली, तो आप उसको सॉल्व कीजिए ग्राफिकली, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के हमें करना क्या है वो सुन लीजिए। हमें जो दो लाइन दी हुई हैं 2x + y - 6 = 0 और दूसरी दी है 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लीजिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाली y की वैल्यू, और ये मेरे पास आती है 6 - 2x। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से निकाली हमने वेरिएबल y की वैल्यू, और ये आती है 4x - 4/2। सो यहाँ पे जब हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, जब x 0 है तो y आता है -2, और जब x 1 रखते हैं तो y आता है 0। सो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन के रिगार्डिंग 2 पॉइंट टेबल तैयार कर ली हैं। और आप देख सकते हैं इस पेज पे सबसे ऊपर टॉप पर पॉइंट टेबल तैयार है सेकंड इक्वेशन के लिए। उसके बाद हमने दोनों पॉइंट टेबल के पॉइंट को प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद जब हमने ग्राफ के ऊपर दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया तो हमने यहाँ बनाई फिर दो स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कॉमन पॉइंट P पर कट कर रही हैं, और ये कॉमन पॉइंट है फिलहाल 2,2। ठीक है, सो दोनों स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कॉमन पॉइंट 2 पर कट कर रही हैं, इन विच एब्सिसा इज 2 एंड y इज ऑर्डिनेट। सो एब्सिसा पार्ट इज 2 एज वेल एज ऑर्डिनेट पार्ट y इज ऑल्सो 2। सो ड्यू टू दिस द सिस्टम कंटेन द सॉल्यूशन 2 2। क्लियर, चलिए आगे। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इनकंसिस्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ग्राफिकल में क्या होगा कि लाइन तीन तरह से अपना बिहेवियर शो करेंगी। या तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे किसी कॉमन पॉइंट पे, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगी। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि लाइन इन तीनों में से कोई एक केस वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। सिस्टम का सॉल्यूशन आ रहा है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, और यदि नहीं आ रहा है तो बोलते हैं फिर इनकंसिस्टेंट। इसके बाद ध्यान से सुने मेरी बात, इस चैप्टर में किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो कि आपको एक पेयर दिया जाएगा, ठीक है, तो जब आपको एक पेयर दिया जाएगा तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुल मिला करके 4 मेथड हैं। और उन 4 मेथड में फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ जो कि लास्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल तो आप समझ चुके हैं कि भाई ग्राफिकल तो अपने आप में सिर्फ इतना है कि आपको जो दो इक्वेशन दी जाएंगी उन दोनों इक्वेशन के रिगार्डिंग आप 2 पॉइंट टेबल तैयार करेंगे, फिर उन दोनों पॉइंट टेबल के जो पॉइंट्स हैं उनको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद आप फिर उनको एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बना लेंगे। उसके बाद दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पर, उस कॉमन पॉइंट P को, या फिर कॉमन पॉइंट आप A मान लेना, उस कॉमन पॉइंट P को आप ग्राफ से करेंगे रीड करने का मेथड ये है कि आप उस पॉइंट से डाल दीजिए 2 परपेंडिकुलर, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे। ये दोनों परपेंडिकुलर आ करके जिस प्लेस पे x को और y को मिलते हैं उनको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था लास्ट में मेथड सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमने यहाँ पे लास्ट में मेथड यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी जाएंगी, आपको जाहिर सी बात आपको एक पेयर दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल में कि x + y = 14 और x - y = 4। तो हम क्या करेंगे उस पेयर से, सुन लीजिए स्टाइल ऑफ वर्किंग।
सो इस मेथड में क्या होता है कि आपको इक्वेशन दो मिलती हैं एक साथ, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन के रिगार्डिंग आप दो पॉइंट टेबल, इसमें जो दो इक्वेशन आपको मिलेंगी उनमें आप निकालेंगे किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। दोबारा फिर सुन लीजिए, you will obtain a pair of linear equation into variable x and y, then select any one equation, and after the selecting the equation, then find the value of one of the variable, maybe x and maybe y. After finding the value of one variable from any one equation, then put that value of that variable into another equation at the place of that variable. दोबारा पे सुनिए, आपको जो दो इक्वेशन दी जाएंगी उनमें से किसी एक इक्वेशन से आप निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। जैसे आपको मैंने दो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई हैं, एक है x प्लस वाई इक्वस टू 14 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वस टू 4। तो x प्लस वाई इक्वस टू 14 से मैंने यहाँ पे निकाली y की वैल्यू, और जो आती है मेरे पास में अभी इस वक्त 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू 14 माइनस एक्स जो आई है, इस y की वैल्यू को आप रखेंगे सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पे। ठीक है, तो जब इसको आप सेकंड इक्वेशन में रखेंगे y के प्लेस पे और फिर इसको आप सोल्व करेंगे, जैसे मैंने किया हुआ है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे जैसे ही आपने y की वैल्यू को रिप्लेस किया सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पे, तो मुझे मिलता है x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। सो 2x इक्वल्स टू 18 and x equals to 9. So whenever x is 9, then हमें निकालनी पड़ेगी अब y की भी वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 9 को फिर आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पे। सो वी हैव 9 plus y equals to 14 and value of y is 5। क्लियर? सो इस तरह से x आ चुका है 9 और y आ चुका है 5। क्लियर? अब यदि ये चेक करना हो कि भाई ये x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5 सिस्टम का आंसर है या नहीं है, मीन्स वेरीफाई करना हो, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए भी उसमें एक प्रोसेस ये है कि आप x और y की वैल्यू को, जैसा x हमारे पास में आया है 9 और y हमारे पास में आया है 5, आप x और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, सेकेंड इक्वेशन में रखिए आप राइट हैंड साइड में, और चेक कीजिए कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है वो आपको मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5 आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखा लेफ़्ट में, और आपको 14 नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी तो मिल रहा है कि भाई x 9 है y 5 है, सो 9 प्लस 5 रिजल्ट इज़ 14। और जब रखेंगे आप सेकेंड इक्वेशन में 9 माइनस 5 वो 4 मिलेगा। सो अभी तो सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि भाई वेरिफिकेशन भी हो रहा है इसमें। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बट whenever वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ इनकम्प्लीट, मान लीजिए कि आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, जो राइट में वैल्यू है वो नहीं मिल रही है लेफ़्ट से, तो तब वो आपका आंसर नहीं है, वो सिस्टम का आंसर नहीं है। उसको आप चेकआउट कीजिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर दी है। ठीक है, यदि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन मिलता है तो ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई सॉल्यूशन सिस्टम को सेटिस्फाई करें। जो आपको सॉल्यूशन मिलता है उसको सिस्टम को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन जब कभी आपका सॉल्यूशन सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम फिर यही कहेंगे कि भाई वो अपने आप में एक सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है, तो कुल मिला करके इस तरह से आप वर्कआउट करें। चलिए आगे। अब देखिए आप ध्यान से, तो इस तरह से कुल मिला करके हमने क्वेश्चन किया। अच्छा एक बात और यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास में कोई इक्वेशन है, कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक पेयर दिया है आपको, उसको आप मेथड कोई भी लें यहाँ से, ये कोई श्योर नहीं है कि भाई आप मेथड एक से ही करेंगे या फिर कोई फिक्सिंग नहीं है, ये अपने आप में एक ओपन है। आप इसमें क्या करें, कोई मेथड लें, आपके पास में एक पेयर है, एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, आप मेथड कोई भी लें उसको सोल्व करें, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जब आप मेथड को बदलेंगे तो आपका जो आंसर है वो बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो मेथड आप कोई भी यूज़ करें और एक ही पेयर को आप किसी मेथड से सोल्व करें, आपका जो आंसर आएगा वो अपने आप में यूनिक आएगा, वो चेंज नहीं होगा। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। और यदि ऐसा हो रहा है कि आंसर बदल रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। तो कुल मिला के इस तरह से इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमें 4 मेथड डिस्कस करने थे, उसमें से हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। अब बचते हैं हमारे पास में केवल 2 मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, हमें एक पेयर मिलेगा जैसे कि आप देखते आ रहे हैं अभी तक, और जैसा कि नाम से चल रहा है पता, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को हटाना, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन वेरिएबल जो भी आप चाहेंगे एलिमिनेट करना, कि भाई हमें एक्स करना है एलिमिनेट या फिर वाई करना है एलिमिनेट, तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन के अंदर उसका कोफिशिएंट सेम करेंगे। भाई मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में तो x की मल्टीप्लाई में 2 है, वो 2x है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में मान लीजिए कि वो 4x है, x की मल्टीप्लाई में 4 है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन का जो 2x है उसको 4 करेंगे। सुन में आया कुछ? तो जब तक दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x सेम नहीं होंगे तब तक वो वेरिएबल x अपने आप में एलिमिनेट नहीं होगा। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट तब होता है जब उसके कोफिशिएंट सेम हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम मेथड एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में बचेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसको हम समझेंगे बाद में। तो इस तरह से फटाफट हम इस चैप्टर का अब तक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। दोबारा से उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि भाई अपने आप में लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन 2 तरह से होती है, एक सिंगल वेरिएबल में, एक डबल वेरिएबल में। यदि आपको लीनियर इक्वेशन को समझना है सिंगल वेरिएबल में तो वहाँ पे केवल x आएगा, y नहीं आएगा। और उसको लिखेंगे हम इस तरह से कि भाई ax + b = 0। यू कैन सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पेज। An equation is of the form ax + b = 0 where a is not equal to 0 is called a linear equation in one variable x। ठीक है, लेकिन हमें अभी पढ़ना है 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी स्ट्रेट लाइन की, वो होती है ax + by + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है 2x + 3y = 6 √5u - 2v = 7। इस तरह से इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और उसके बाद में सेकंड हेडिंग आया है पेज पर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए फटाफट
A pair of linear equation in two similar variable is said to be form a system of simultaneous linear equation. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्ड है साइमल्टेनियस, इसका मतलब होता है एक साथ। क्लियर? सो जो साइमल्टेनियस वर्ड है अपने आप में, इसका मतलब होता है एक साथ, मीन्स एक पेयर। तो कुल मिलाकर के आप ये बात ध्यान रखें कि जो वर्ड है साइमल्टेनियस, इसका मतलब होता है एक पेयर से, मीन्स साथ साथ से। सो अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू सिमिलर वेरिएबल इज सेड टू बी फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन। तो कुल मिलाकर के जब आपको एक पेयर दिया जाएगा x प्लस वाई इक्वस टू 14 और x माइनस वाई इक्वस टू 7, इस तरह से, तो उसको बोलेंगे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब उसको हम सोल्व करेंगे तो कुल मिला के हम वहाँ से x और y की एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू जो अपने सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बाद में आता है नेक्स्ट हेडिंग होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है वो ज़रा वो समझिए। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जब किसी इक्वेशन का राइट पार्ट ज़ीरो हो जाए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वस टू ज़ीरो, x प्लस 4y इक्वस टू ज़ीरो, तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? सो आप इस बात से बेफिक्र रहें कि भाई कभी आप कंफ्यूज रहें साइमल्टेनियस में और होमोजीनियस में। साइमल्टेनियस में क्या होता है कि आपको मिलेंगी एक साथ दो इक्वेशन जिनके अंदर राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसके बाद है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होमोजीनियस में क्या होता है कि आपका इक्वेशन का जो राइट पार्ट है वो एग्जैक्टली ज़ीरो होता है, जैसे कि x प्लस 2y इक्वस टू ज़ीरो, 3x प्लस 4y इक्वस टू ज़ीरो। क्लियर? सो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? चलिए आगे। तो इस पेज पे इतना ही है। उसके बाद में मेथड आ गए। इस चैप्टर के 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट में हम अपने सिस्टम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड। सेकंड में हम यूज़ करेंगे टू वेरिएबल लेकर एक्स वाई को, एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि बोल देंगे वो कि भाई हमने एक दिन मार्केट से 5 बुक्स और 3 पेन परचेज किए और शॉपकीपर को हमने पे किया 400 रुपीज़। अनदर डे हम फिर गए, हमने वहाँ से फिर 4 बुक्स ली, 10 पेन लिए और हमने पे करा उसको 1000 रुपीज़। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है? तो हम क्या करेंगे उस केस में कॉस्ट ऑफ 1 बुक मान लेंगे सपोज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेंगे सपोज हम y। तो हम इस तरह से वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी उस वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाएगा उसको आप एज अ टू वेरिएबल एक्स वाई एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे हम वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंट आया, इनकंसिस्टेंट आया। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है, फिर चाहे वो अपने आप में यूनिक हो या फिर वो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हो। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट में सिस्टम का कोई भी आंसर नहीं होता है। ठीक है भाई।
तो कुल मिलाकर के ऐसे ही हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इन सब को आप अपनी जो नोटबुक है फेयर नोटबुक उसके अंदर नोट डाउन करेंगे और इनको करना भी है। तो इस तरह से आप अपना वर्क शुरू करें फटाफट। आज आपको एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करनी है, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करें मेरे साथ। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा कॉल नंबर जो है वो सभी के पास में है, तो आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर सभी के पास में है, सो वी हैव नो प्रॉब्लम। सो अपना डाउट क्लियर करें, इट्स योर ड्यूटी एंड आई विल टेल यू, दैट इज़ माई ड्यूटी। सो बी ऑनेस्ट regarding to your study, be honest for your regarding to the problems, queries, डिस्कस करते रहें और पढ़ते रहें और पूछते रहें। आज इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में।